जो समझाते सन उसके सब कुछ गुरु नानक पातशाह जी ने उन्होंने समझाया कि अकाल पुरख कुछ होर है तो होर करती जाती उसकी बाणी की व्याख्या अवतार बाणी की डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी उन्होंने रन की हुई है। मैं बेनती करता हूँ कि पहले बैठे सज्जन खेती से खेती पहुंचने की बात करो। भाई साहब जी व्याख्या आरम्भ कर लगे जिस तरह के ठीक खेती गुजरात साहब के पहुंचो ताकि इसी पानी की संबंध न रख सके और सफल करके उपकार वाणी की अगू व्याख्या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू साहब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर ना कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही जिस पै करहूं बिनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, ज्ञान ध्यान किछ करब न जाना। सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, धन वाहिगुरू साहिब जी। तदै धर्म धरे धर्मापुर, गुणकारी मन धीरा। तदै धूल पड़ै मुख मस्तक, कंचन भये मनूरा। धन धरणी धर आप अजूनी, तोल बोल सच पूरा। करते की मित करता जानै, कै जानै गुर सूरा। ज्ञान गवाया दूजा पाया, गर्भ गले बिख खाया। गुर रस गीत बाद नहीं भावै, सुनिए गहर गंभीर गवाया। गुर सच कहया अमृत लहया, मन तन साच सुखाया। आपे गुरमुख आपे देवै, आपे अमृत पी आया। एको एक कहै सब कोई, हमै गर्भ व्यापै। अंतर बाहर एक पछाणै,
ਇਉਂ ਘਰ ਮਹਿਲ ਸਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੈ ਹਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਏਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ, ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖ ਕਿ ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੱਟੀ ਤੇ, ਜਦ ਓਮ ਨਮੋ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲਮ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਆਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਆਪ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੋ ਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਂਡੇ, ਤੇ ਉਸੀ ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਆਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਸਾ, ਧੱਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ngੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ngੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ngੰਗੇ ਤੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਈੜੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਲਖਾਇਕ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਯੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈੜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਜੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਸਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਤਕਾਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਮੀਆਂ ਜਾਂ ਓਮੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਓਮੀ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ
आसा की वार दे वर्गी ही एक इन्नी इंपॉर्टेंट बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच है, जिन्हों असी दखणी ओंकार रामकली दखणी ओंकार आखदे हैं। पर कहते बदकिस्मती ये है कि आसा की वार तो रोज़ पढ़ी जाती है, रोज़ सुनी जाती है, पर यह बाणी जिहदे विच कोई ऐसा विशा नहीं जिन्हों गुरु नानक साहब ने ना छोया होवे। धर्मराज का विशा है, मौत का विशा है, आत्मक जीवन का विशा है, दूतां का विशा है, पढ़ियां का विशा है, अनपढ़ियां का विशा है, गुरु तो बलिहार जाउण का विशा है, पार ब्रह्म परमेश्वर की इबादत का विशा है, माया का सब तो वड्डा पसारा जिहड़ा पसरिया होया है उहदा विशा है। माया दे विच गुरु च हुई सुरत नूं किस तरह गर्क कीता माया ने वो दस्या, ते फिर बचिया किवें जा सकदा है वो दस्या, भावें कि उपदेशक है। पर कहंदे ये बाणी सिखां ने गोल दिती, अखों ओले ओले कर दिती, इस बाणी वाल ध्यान नहीं दिता। और ये बाणी उन्नी ही सिख दे जीवन दे लई लाभदायक है जिन्नी बाकी बाणियां जा जिवें असीं आसा की वार पढ़दे हां। और तुसीं हैरान होवोगे ज्यों ज्यों बाणी अगे अपने पड़ाव तक जाएगी, इस बाणी दे पड़ाव अगे अगे पदे वधणगे, तुसीं हैरान होवोगे एक विषय विचों निकल के सूक्ष्मताई रूप से किस तरह गुरु नानक साहब दूसरे विषय विच जांदे हैं। सो आओ जी अज आरंभ करिए, क्योंकि सिद्ध्यंग आया सस्सा, सस्से तो असी दूसरा पदा विचार लिया, सस्सै सब जग सहज उपाया, ये असी पिछले हफ्तियां दे विच विचार कीती है। हुण जिहड़ा तीसरा पदा है वो सिद्ध्यंग दद्दा धद्दा लफ्ज़ है जिहड़ा धद्दा धर्म धरे धर्मापुर, इहदी विचार आरंभीए। रसना पवित्र करो, मनोबिरतियां एकाग्र करके आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का अज संपूर्णता दिवस है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ सच्चे पातशाह महाराज जी के संपूर्णता दिवस दियां भी मुबारकां। और ये ऐसा वाहिद ज्ञान है, ऐसा सरोवर है, ऐसा थाल गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने परोस के रखिया है मनुखता लई कि जिहदे ताबिया दसां दे दसां गुरु साहबान हाज़र नाज़र ने। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी हाज़र ने। असी रोज़ पढ़ते हैं दसां पातशाहियां दी जागत जोत है, दसां गुरुआं दी जागत जोत है। और इस जागत जोत का ध्यान धरना की है, पाठ का विचार करना जिहड़ा तुसीं कर रहे हो। मैं बहुत धन्नवादी हाँ प्रबंधकों का जिन्हों ने ये बाणी चुनी। मैं उन्होंने गुरसिखां तो भी बलिहार हाँ, क्योंकि ये बाणी बहुत सिख के जीवन वास्ते सुननी भी ते पढ़नी भी ये बहुत लाभदायक है। बहुत कुछ ये विच गुजिया होया। अज सच्चे पातशाह महाराज जी बख्शिश करते हैं धद्दा, धद्दा लफ्ज़ के कोई अर्थ नहीं है। संस्कृत च धा धा आख्या जाता है, तो पंजाबी च धद्दा दो बारी उच्चारण होता है। ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह ही कक्का खक्खा गग्गा घग्गा। हुण का खा गा घा ये तो हो गए संस्कृत हिंदी के उच्चारण, पर पंजाबी गुरमुखी का उच्चारण दो बारी है। इसका मतलब गुरु साहब ने बाणी ही कोई देवनागरी च नहीं उचारी, ये गुरमुखी दे विच ही सतगुरु जी ने उचारी है। धद्दा क्योंकि सिद्ध्यंग का धद्दा है, धद्दा लिया धद्दा धर्म धरे धर्मापुर। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहते कि भाई इस धरती नूं पाप करने वास्ते नहीं बनाया, इस धरती नूं अपना ढिड उधर भरन वास्ते नहीं बनाया, जब इस धरती ते धोखाधड़ी पाप एक दूसरे की कतलो गारत लई नहीं बनाया। जिस धरती नूं बनाया है ते महाराज जी कहते राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल, ते अगला वचन सारे पढ़ो, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धरती धर्म कमाउण वास्ते है। गुरु नानक साहब जी का जप बाणी का वचन है। ते धर्म का मतलब की होंदा है? धर्म ध्रुव धातु तो निकलिया संस्कृत दे, जिस ध्रुव का अर्थ है, ध्रुव धातु का अर्थ है जोड़ना, जुड़ना। गुरु सदा ही जोड़न आया है। मनुखता लुकाई मनमुखताई बिरती तोड़ती है, पर गुरु सदा ही जोड़ता है।
धर्म का अर्थ ही है जोड़ना, अपने कारज वल सदा ही धाउना, अपने कारज वल अपनी जिन्नी भी जिम्मेवारियां ने, क्योंकि धर्म के बहुत अर्थ ने। एक धर्म असी कहते हाँ सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम, कि सारिया धर्मां च श्रेष्ठ नाम नू कमाउणा, नाम नू जप के गुणां नू धारण कर लेना। जे गुरु साहब कहते हैं झूठ ना बोल पांडे सच कही है, जे बाणी कहती है बोलीए सच धर्म झूठ ना बोली है, जो गुर दसै वाट मुरीदां जोड़ी है। ये कमाउणा धर्म है सिख लई। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा माना हंडाए, ये धर्म है कमाउणा। कि जित पीता मत दूर होए बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणी खसमों धक्के खाए, नशियां तो परहेजगारी करनी, ये धर्म है कमाउणा। जे सच्चे पातशाह महाराज जी कहते हैं जब धारै को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत, बैरी मीत मित्र भी नहीं। जे धर्म कमाउणा है तो सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। ये धर्म कमाउणा है बिसर गई सब तात पराई, किसी दी बखीली नहीं रखनी, किसी लई ईरखा नहीं रखनी। ये है पहला धर्म जिन्हों महाराज जी कहते हर को नाम जप निर्मल करम, कि नाम कला जपण वाला बंदा कहे मैं ते नाम जप रहा मैनू कुछ नहीं पता, पर अधूरी तुक नहीं लैनी। नाम जपना है पर अगली तुक है जप, जपण तो बाद निर्मल करम। जे तेरे कर्म ही निर्मल नहीं होए फिर महाराज कहते तेरे जपिया का कोई फायदा नहीं, क्योंकि राम राम करता सब जग फिरै राम ना पाया जाए। इत्थे ते जपण वाले हज़ारां करोड़ां सालां तो तुरे हुए ने, इत्थे ते किन्ने कुछ ने, किन्ने किसी का अंत पाया नहीं। जे जोगियां दा गल जिक्र करिए तो गुरु नानक साहब महाराज जी यही कहते कि जोग ना खिंता जोग ना डंडा जोग ना भस्म चढ़ाइया, जोग ना मुंडी मुंड मुंडाया जोग ना सिंही वाई है, अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है, गली जोग ना हुई। जुबान दे नाल गल्लां दे नाल नहीं, एक दृष्टि कर समसर जाना, सारियां नूं बराबर देखना, ये पहला धर्म है। ये होगी जी बाणी च धर्म की पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा जिहड़ी धर्म की है वो है जिम्मेवारी, कि जिम्मेवारी की है साडी, जिन्हों असी आसा की वार दे विच भी पढ़ते हैं या संस्कृति सलोक च भी ये पता है। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। इत्थे शब्दं का अर्थ है धर्म फर्ज, कि जोगी का फर्ज जिहड़ा है ना ज्ञान की कमाई है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। ब्राह्मण का जिहड़ा धर्म है वो भी दस्या है, खतरी का जिहड़ा धर्म है वो दस्या। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं, तो ब्राह्मण है खतरी शब्दं सूर शब्दं। जे ब्राह्मण की कमाई, जे जोग की कमाई जोग वाली नहीं है, भाव सच्चे प्रभु के नाल जुड़ना नहीं है, फिर वो जोग नहीं है। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, ज्ञान नहीं है फिर धर्म नहीं होया। वेद शब्दं ब्राह्मण है, ब्राह्मण जे वेदां तो भज गए फिर ब्राह्मण काहदा रहा। ब्राह्मण की जिम्मेवारी है कि जिन्हें वेदां के ज्ञान नूं प्राप्त करके अपने जीवन नूं सुधारना है। खतरी शब्दं सूर शब्दं, जे खतरी सूरमता ही गति तो ही भज गया तो फिर काहदा खतरी है। यदा मतलब धर्म का अर्थ कला बाहर का भेख या रब का नाम जपना नहीं, अपनी जिम्मेवारी नूं निभाउणा, जो सानू जिम्मेवारी मिली है उन्होंने असी पूर्ण रूप दे विच खिड़े मत्थे निभाइए, ये भी धर्म है। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खतरी शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं। पर सारियां दे वखरे वखरे फर्ज हो सकते हैं समाज दे विच। कोई दुकानदार हो सकता है, कोई किसान हो सकता है, कोई इत्थे एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कोई सर्विसमैन हो सकता है, कोई किसी रूप दे विच अपना गुजारा रोजगार कर रहा है। पर एक धर्म सब दे लई पक्का है, एक जिम्मेवारी सब दे लई पक्की है। सर्व जिन्हों क्या सारियां दा, कि जे कह दिता शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाना भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो। जेड़े एक जिम्मेवारी, केड़ी जिम्मेवारी, जेड़ा प्रभु दे नाम नूं जप के अपने कर्म निर्मल करदा है ना, जे कोई सारियां विच इको रूप च रब नूं देख लैंदा है वो धर्मी मनुख है। वो सब दे विच ये नहीं कि ये वड्डा है ये छोटा है, नहीं। वो खतरी विच भी ब्राह्मण विच भी सूद्र विच भावें समाज दियां ये जातां ने,
पर जिहड़ा सर्ब दे विच इक्को देख लैंदा ना, जिहड़ा कहंदा सबै घट राम बोलै, रामा बोलै राम बिना को बोलै रे, एकल माटी कुंचर चीटी, कोई ही उन्हें मिट्टी तो हाथी तो लैके कीड़ी तक बनाए ने, सारे मनुख इक्को मिट्टी दे बने हुए ने। इस करके बाबा फरीद जी कहंदे काहदा जात पात दा मान करदा है, मिट्टी मिट्टी है, फरीदा खाक ना निंदी है, खाकू जेड ना कोई, जिउंदियां पैरां तले मोया उपर होए, सब ने मिट्टी होना है। पर इस मिट्टी होने तो पहला इस मिट्टी नूं पार ब्रह्म परमेश्वर की जोत की पछाण आ जाए, तो फिर जे इनू पछाण आ जाएगी फिर ये मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी, ये नूर बन जाएगा। गुरु अर्जुन साहब कहते खाक है तो मिट्टी, पर जे रब की पछाण धर्म कमा ले फिर नूर हो जाएगी। खाक नूर करदम कहते उदा ही नूर है, सारी सृष्टि च उदा ही धर्म है, पर बंदा बस अधर्मी होया होया, बंदा कहता मैं ही मैं हाँ, रब है नहीं। इस करके गुरु नानक साहब महाराज जी इत्थे धर्म का जिक्र करते हैं, धद्दा धर्म कि असल धर्म ध्रुव जोड़ना, रब नाल जुड़ना, अपने कारज वल वधना। अपने कारज वल वधन का की कारण है, क्यों है? क्योंकि महाराज जी कहते कि अपने कारज वल जे नहीं वधेगा फिर जन्म बिरथा जात रंग माया के, तेरा जीवन बिरथा जाएगा। इस करके सरंजाम लाग भवजल तरन कै, तू जतन कर, सरंजाम का मतलब तू उद्यम कर जुड़न का। इस जुड़न नूं क्या है कि साध संगत दे विच बैठिया इक्को काम करना है, भई प्राप्त मानुख दे होरिया जपो जी, गोबिंद मिलन की अवर काज तेरा, मिल साध संगत भज केवल नाम। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम नूं जपण दी सतगुरु जी ने ताकीद की है। उहदे नाम नूं संगत च जपना ही सब तो वड्डा धर्म है। ये सारिया धर्मां चों श्रेष्ठ धर्म है, सब नूं बराबर कर दिंदा है। इत्थे कोई वड्डा कोई छोटा नहीं, कोई भावें कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइयां, कोई अलाए, कोई इत्थे आके बह के प्रभु के नाम नूं ध्यान लग जाए वो धर्मी है, कोई भेत नहीं है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता हुक्म यह है, धद्दा धर्म धरे धरनी धर। धरनी धर का मतलब है धर्मपुर, वैसे आख्या धर्मपुर नूं ही धरनी धर आख्या कि ये धरती, ये धरनी, ये धर्म कमाउण वास्ते ये पुरी दिती है। जिन्हों ये तुक ना भुलियो भाई इस पदे वास्ते कि भाई तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाला। इनू महाराज जी धर्मपुर कहते हैं, पर यह धर्मपुर है कित्थे, वो केड़ी थां है, वो केड़ा टोआ, वो केड़ा टिब्बा है, वो केड़ी चोटी है, वो केड़ी गुफा है जिथे जाके असी धर्म कमा सकते हैं। तो फिर महाराज जी ने कहा कि हो मन तन खोजी भाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिला मेरी माई। धरती का खेड़ा खिता है जिन्हों धर्मपुर कहीए, कित्थे है वो? फिर अगे जिक्र किया मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ सिख दे लई जां हर मनुख दे लई। जिथे इको प्रभु की इबादत वाली संगत बैठी है वही धर्मापुर है। महाराज कहते सिख लई यही बैकुंठ है जिथे संगत बैठी है, यही स्वर्ग है, यही दुनिया के सारे सुख ने। धद्दा धर्म धरे धर्मापुर, ये संगत च बैठ के धर्म कमाउणा है। गुणकारी मन धीरा, इत्थे कल्ला नाम जप के वापस नहीं जाना, गुरु पातशाह जी के गुणां नूं मन के अंदर वसाउणा है ते मन नूं धीरज देना है। इस सरदल तो बाहर मन बहुत डोलदा है, की बनेगा की नहीं बनेगा। पर इत्थे महाराज कहंदे कि गुरु के शब्द का आसरा दे के तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। जपो जी ना तुम डोलो हो ना हम गिरते। इनू महाराज जी कहंदे कि ओट तेरी लई है, जिहड़ा अडोल है। इनू साहिब जी कहंदे कि जिन्हें ये मन धीरा, मन नूं धीरज दिता है, फिर धद्दा धूल पड़ै मुख मस्तक, कंचन भये मनूरा। तो फिर इत्थे संगत की जे तफैलिश भाव अपना आप त्याग के, अपनी हौमै मार के, ते जपो जी दान महिंडा तली खाक, जे मिले तो मस्तक लाई है। जे कोई संगत की धूड़ मस्तक ते लाए, यदा मतलब बाहरों नहीं, अंदरों अपनी हौमै त्याग दे। जिन्हों गुरु अर्जुन साहब जी का बचन बड़ा कमाल दा कि साहिब जी कहंदे
कि जे मैं सत संगत विच आके अपनी हौमै अपनी धूण अकड़ के रखां कि मैं नाम की प्राप्ति कर सकदा। महाराज कहते नहीं, इत्थे आके मैं ही खत्म हो जाए, इत्थे आके तू ही तू हो जाए। महाराज जी कहते ऐसी कृपा मोहे करो, जपो जी ऐसी कृपा मेरे ते ऐसा तरस करो। संता है चरण हमारो माथा, नैन दरस्तन धूर भरो। मैं कली ये धूण मस्तक ते ना लावां, मेरा सारा धन संगत दी तफैलिश, संगत दी धूड़, संगत दे असर नाल मेरा रोम रोम मान जाए कि मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। संगत दी धूड़ नाल मेरे अंदर ये सच आए, मैं ना ही कछ हूं ना ही किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। संगत दी धूड़ नाल पता लग जाए कबीर ना हम किया ना करहेंगे ना कर सके हैं शरीर, क्या जानो किछ हर किया भयो कबीर। कबीर कबीर इत्थे भगत नहीं, भगत जी का नाम नहीं, वड्डा हका कबीर करीम तू तू ही तू। ते जिन्हों गुरु अर्जुन साहब कहते सारे जपो रसना जपती तू ही जपो जी रसना जपती तू ही सिखना। ये संगत की तफैलिश है। जिवें बाहर धूड़ उड़दी होए ना सड़क ते, बंदा लख जतन कर ले कि अंदर धूड़ ना जाए, मुंह ढक ले, पर सिर की टीसी तो लैके पैर की उंगल तक धूड़ पिंडे ते लग जाती है। इस करके महाराज कहते, गुरु नानक साहब कहते जेड़ा संगत विच आ जाए 100 बारी मनमुख होए कहे कि मैं असर नहीं कबूलदा, पर ये उड़दी तफैलिश धूड़ की तरह इथों किवें बच जाएगा। वो माड़ी है पर यह चंगी है। वो कपड़े बस्तर मैले करने वाली है, ये मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए वो धोए भरिए मत, पापा के संग वो धोपै नावें कह रंग। ये धूड़ मस्तक दे भाग जगाउण वाली है, ये मैल खोण वाली है। इनू महाराज जी कहते मैल खोई कूट अग हरे निर्मल पही चीता। ये संगत दी धूड़ है। इस करके साहब जी कहते वो धन ने गुरसिख प्यारे जिन्होंने गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने भी यही कहा कि भाई रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मृत मंडल इत तू ही। इस धरती ते कोई रखण वाला ते तू है। ते साहिब जी अगे कहते धद्दा धूल, धद्दा का कोई अर्थ नहीं, लफ्ज है सिर्फ लिपि चल रही है। धूल का मतलब है दान महिंडा तली खाक, जिन्हों बाबा शेख फरीद जी कहते। सारे जपो जिना पछाता सच जिना, ते अगला वचन की है चुम्मा मैं उन्होंने पैरों की धूड़ नूं चुम्मा, कि जिन्हों ने पार ब्रह्म परमेश्वर की पछाण कर ली। बह गए जेड़े संगत तै साहिब की बात जे आखें कहो नानक क्या जी दीजै, सीस बड़े कर बैसन दीजै बिन सिर सेव करी जाए। ये धूड़ है। कभी ये नहीं धूड़ कट्ठियां करके असीं घर लै जाइए तो साडा पार उतारा हो जाएगा, खिमा बख्शिओ। ये इत्थे ही वरतदी है किरपा। ये किरपा तुसीं इहनूं पैक करके थैलियां च नहीं ले जा सकते, ये तो इत्थे ही भरेगी। बस ये तो मन रूपी बोझे च भरेगी। जे इत्थे भर सकते हैं तो भर लईए। महाराज कहते ये बारी नहीं है। इस करके धद्दा धूल पड़ै मुख मस्तक, जिहदे मुख ते जिहदे मस्तक ते संगत दी गुरु दी धूड़ पै गई। कंचन भये मनूरा, मनूर कहते जंगालिया होया लोहा, कंचन कहते सोना। कच्चो कंचन भयो नाम गुर श्रवण है सुनियो, लोहो हो लाल। कहते इत्थे आके कच वर्गा सोना बन जाए जिहड़ा नाम सुन ले। इत्थे लोहा कहते माणक बन जाए। इत्थे महाराज जी ने गुरु रामदास के बाबत बचन है ना, कच्चो कंचन भयो, क्योंकि नाम गुरु सरवणे सुनियो बिकते अमृत होयो। जहर अमृत हो जाता इत्थे आके। क्यों की कारण है? कहते गुरु का नाम मुख तो बोलण दे नाल, सतगुरु जी का शब्द ध्यान दे नाल। संगत ये नहीं कि बाहरों मत्था टेकिया सिर झुकाया ए जी धूड़ ला ली चलो जी घर ना, ये धूड़ नहीं है। धूड़ ये है जिन्हों महाराज कहते महिमा साधु। अच्छा ये शब्द शुरू होता है पिंगुल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता। पिंगुल ते हुण नहीं ना, पैरों का लंगड़ा नहीं, सुरत साडी लंगड़ा गई है। सुरत साडी प्रभु दे मार्ग ते नहीं तुरदी।
ਇਹ ਲੰਗੜੀ ਸੁਰਤ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਮਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਦਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਰਖ, ਚਤੁਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣਾ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਮਹਾਪਾਪੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰ, ਮਨੂਰ ਵੀ ਲੋਹਾ ਵੀ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਗੁਰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ? ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਾਨ ਤਪ ਦਇਆ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ? ਕਿ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਾਲੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇ ਮਨੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਚਨ, ਜੰਗਾਲੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਧਿਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਡੋਲਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੰਘ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧੱਦਾ ਧੂਲ ਪੜੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਾਲਾ ਲੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਮਨੂਰ ਵੀ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਨ ਧਰਣੀ ਧਰ ਆਪ ਅਜੂਨੀ, ਤੋਲ ਬੋਲ ਸੱਚ ਪੂਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ। ਦੇਖੋ 3 ਦਿਵਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ 1604 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ 1706 ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1706 ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1708, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਣ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤਲਾਬ ਸੀ,
जिन्हां कलमां दे नाल भाई मनी सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी वल्लों उचारण कीती हुई बाणी नूं लिखिया, ਜਿਹੜੀਆਂ कलमां फिर लिखण तो बाद लोड़ दे विच नहीं आईयां, थोड़ियां रह गईयां, नहीं वरतियां गईयां, ਉਹਨੂੰ फिर सर दे विच ही सुट दिता गया। इस करके उस थां दा नां साबू की तलवंडी जांदे ही उत्थे पहला थां ही लिखण सर आउंदा। इत्थे महाराज जी ने संपूर्णता करवाई। जद गुरु तेग बहादुर साहब पिता जी दी जैजावंती राग भी पाया। बाकी देखो 15 रागां दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी दी बाणी है। जिहड़ा 15वां राग है वह गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच पहला नहीं सी, बाद च पाया गया जैजावंती राग। और महाराज जी के सलोकां नूं सतगुरु जी ने 57 सलोक जी की विचार असीं पिछे करके आया। इस जद पूर्ण किया, फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने 9 महीने साबो की तलवंडी इस बाणी की संथ्या करवाई, पर हजे सतगुरु जी ने गुरता गद्दी नहीं बख्शी। जिहड़ी गुरता गद्दी बख्शी है वो फिर महाराज जी ने नदेड़ की धरती 1708 दे विच वरती है। जिस गुरु दे तुसीं सिख हो, ये तो सानू थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो गुरु नानक साहब कहते जिन्हों तुहाडे भाव जिस गुरु राही तुहानू प्रभु की प्राप्ति होनी है ना, जिहदे लड़ गुरु गोबिंद सिंह साहब ला के गए ने, तो गुरु नानक साहब कहते वो गुरु कोई कच्चा नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ गुरु नानक साहब नूं छड्ड के बाकी 9 गुरु साहबाना दे असीं 3 दिहाड़े मनाउंदे हां, प्रकाश, गुरता गद्दी ते ज्योति जोत। सिर्फ गुरु नानक साहब दे 2 हुंदे है, सिर्फ प्रकाश ते ज्योति जोत। क्यों? जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई। गुरु नानक साहब दा प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा सकता है, ज्योति जोत है, पर गुरता गद्दी नहीं है। क्योंकि आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो। गुरु नानक साहब दे भी 2 दिहाड़े मनाए जाणगे ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे भी, महाराज जी दे असीं दिहाड़े मनाउंदे हां, पर एक दिहाड़ा गुरु ग्रंथ साहब दा कदी नहीं आएगा, वो है ज्योति जोत। कदी नहीं आएगा, क्योंकि ये जागत जोत गुरु है। ये आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इन्हें कदी नहीं खत्म होना। गुरु ग्रंथ साहब जी का असी पहला प्रकाश मनाउंदे हां, संपूर्णता दिवस मनाउंदे हां, ते असी गुरता गद्दी मनाउंदे हां, स्थापना दिवस भी जिन्हों कहिंदे आ, गुरता गद्दी दिवस मनाउंदे हां। ये 3 दिहाड़े ने, पर ज्योति जोत कदी नहीं है। क्यों? जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई, उना अंतर नाम निधान है, नामों प्रगट होए। नाम तो जो प्रगट होएगा उदा खात्मा नहीं है, उन्होंने खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे सतगुरु जी दे सच्चे पातशाह जी दे संपूर्णता दिवस नूं आप मना भी रहे हो। आओ थोड़ा जा बाणी विचों होर देखिए। दास दा बाणी दे प्रमाण लेना कदी भी विद्वता दा प्रगटावा नहीं। सिर्फ मन च ये चाव हुंदा है कथा सिमरन बन जाए, असी बाणी दी तुक तो बाहर ना जाइए, बाणी दे दायरे तो बाहर ना जाइए, सिर्फ कथा साडी सिमरन बन जाए, चेता आ जाए, बाणी नाल राबता रहे। महाराज जी अगे बचन कहते हैं, धन धरणी धर आप अजूनी, तोल बोल सच पूरा। कहते एक गुरु इस धरती ते प्रभु तो बाद है जिहड़ा तोल करके भी ते बोल करके भी पूरा है। बाकी इस धरती ते सारे अधूरे ने, क्योंकि सतगुर जिन्हों थाप दिता उही पूरा है, बाकी सब अधूरे ने। क्योंकि सतगुरु गुरु नानक साहब कहते जे साडा होए ते अधूरा हो सकता, पर साडा है ही नहीं। जपो जी जैसी मैं आवे, यह ते ओदा है, ओदा आया कदी अधूरा नहीं हो सकता, ओदा पूरा है। ते गुरु अंगद साहब कहते फिर इस धरती ते वेद बाणी पई है, वेदां दा बहुत संग्रह पिया होया है। सत्कारयोग ने वेद भी, सिमरतियां भी, पुराण भी, शास्त्र भी। पर गुरु अंगद साहब नूं कहा फिर ये क्यों, फिर वाहिद शब्द क्यों, गुरु नानक साहब की बाणी दी अगे पसारा क्यों, जब बहुत वेद पे ने, बड़े 4 वेद ने, 27 सिमरतियां ने, पुराण साडे कोल ने। पर महाराज कहते देखो दुनिया के लोगों उन्होंने वेदां दे विच मन घड़त कहानियां पातियां गईयां, सिमरतियां दे विच नरक सुरक दे अवतार ते डर दियां बातां पातियां गईयां, पुराणा दे विच रज के कर्म कांड पाते गए कि बंदा सारी उम्र ना उलझन दे विच ना रह जाए। इस करके महाराज जी कहते कथा कहानी वेद पवित्र तां हुंदे जे इहदे विच कथा कहानी ना पाई जाती मन घड़त। कहते बहुत कुछ पाता, बेदी आनी वेदां दे विच। फिर कहते दुनिया डरन लग गई क्योंकि
अपनी दुकान चलाई विप्रवाद ने। किस करके? पाप पुन विचार। बंदा कहता मेरे तो पाप हो गया पंडित जी, वो कहता गल ही कोई नहीं, लियाओ जी इत्थे दक्षिणा रखो, असी 10 दिन ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਪ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਘਰ ਵੱਤ ਧਰਾਏ, मन की मैल ना उतरै इन बिद, जे लख जतन कराए। महाराज कहते इस करके धर्म स्थानां नूं भी माया तो निर्लेप नहीं रहन दिता। तीरथ जाऊं तां हों करते, पंडित पूछो तां माया राते। कहते ये भी माया दे विच, सो स्थान बतावो मीता, जाके कीर्तन हर हर नीता। इस करके गुरु अंगद साहब कहते ये खजाना आया है। कथा कहानी देखो किसी धर्म नूं कटाक्ष नहीं है, जे कोई गल गलत होए तो तुसी मेरी बांह फड़ दिओ। ते गुरु अर्जुन साहब महाराज भी इस गल नूं मोहर लाउंदे ते गुरु अंगद साहब कहंदे वाहिद गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जात पात दी गल नहीं होएगी, पर वेदां नूं भी जातां पातां दे नाम ते वंड दिता गया। कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुन विचार, दे दे लैना, लै लै देना, नरक सुरग अवतार, उत्तम मध्यम जाति जिनसी, जातां विच पै गया सारा समाज। उत्तम मध्यम जाति जिनसी, भरम पवै संसार, ये इसलिए आई अमृत बाणी, तत्व वखाणी, ज्ञान ध्यान विच आई, गुरमुख आखी, गुरमुख जाति, सिफती कर्म ध्याई। ये सिर्फ उस प्रभु की सिफत सलाह लई आई है, ना किसी राजे की सिफत है इहदे विच झूठी, ना किसी की माड़ी निंदा इहदे विच है, ते ना किसी लई गफलत है, ते ना किसी की कहानी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੋਲ ਬੋਲ ਸੱਚ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ, परमगत मेरी जलन बुझी, शीतल होए मनियुआ सतगुर का दर्शन। सतगुर जी फिर अगे कृपा कर दे, कहते इस धरती ते गुरु ही तोल बोल च पूरा। क्यों? क्योंकि करते की मित करता जाने, कह जाने गुरसूरा। एक करतार दी करतार जान सकदा है, जां वाहिगुरु करतार दी पूरा गुरु जान सकदा है। दूसरा सिर्फ गुरु है, तीसरा इस धरती ते है ही नहीं। करते कीमत करता जाना, पर इसलिए दूसरा नहीं किया जाता क्योंकि अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक ही हो गए। क्योंकि एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा एक ही हो गए। क्योंकि एक है क्यों यही क्या, तू दाना तू अब चल, तू ही जात मेरी पाती। हुण जात पात दुनिया दी नहीं है, हुण जात पात गुरु दी है, जो गुरु दी है, जो गुरु ने देती। हुण गुरदास मान ने यही ते रौला पाया, वो बीड़ियां फूकण वालियां नूं, चिलमा मूँह च लाउण वालियां नूं कहंदे गुरु अमरदास जी की वंश हत्थ हो गई है। ये थोड़ी है सच। गुरु अमरदास जी की जे कोई वंश है तो फिर सुनियो कौन है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी, गुरु नानक साहब की वंश, ये कदी नहीं कहती कि ये वंश इन्हां दी पुत्रां तो चली है, कि लक्ष्मी चंद ते श्री चंद ते लक्ष्मी दास। नहीं, गुरु अंगद साहब ते गुरु अमरदास जी की वंश कोई ये थोड़ी क्या कि जी नहीं जी ये दातू दासू ते मोहन मोरी, ना, ये नहीं है वंश, कदी भी नहीं है। ये वंश है जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ते गुरु नानक साहब की वंश सुनो, ताते अंगद भयो, तत् स्यों तत् मिलायो। ते अंगद साहब जी की अंश, अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो। ते गुरु अमरदास जी की वंश कोई चिलमा पीण वाले नहीं, महानशेड़ी नहीं, जिन्होंने अद्धे माजे नूं बीड़ी सिगरटां पीने, ये लफ्ज़ भी नहीं वरतने चाहिए गुरु दे सन्मुख, संगत दे सन्मुख। सारा माझा ऑटो चलान लग गया, अद्धे तो वध सब रोडे घोडे हो गए, केस कटाते, ते सारियां दे ऑटो दे विच तुसीं गड्डियां च दे वो फोटोआं देखोगे उन्हां दियां। उही नशा, क्योंकि छूट है ना, खुल है उत्थे जो मर्जी करिए, पर इत्थे मर्यादा है।
इत्थे गुरु दे सन्मुख गुरु वर्गा होना पेगा, उत्थे जो मर्जी करो। उथे झूठियां आशकियां, इत्थे सच्ची आशकी है। इस करके अमरदास अमृत छतर गुर रामै दियो। ये वंश एवें नहीं है, ये होर पढ़ लो बचन। जिहड़ी वंश चलदी है ना, प्यो दी पुत दादे दी पिता नू, पिता दी पुत्तर नू, वो वंश केड़ी है? प्यो दादे जेविया पोता परवान। गुरु नानक साहब जी दादा, गुरु अमरदास जी दे, गुरु अंगद साहब जी दे पिता, ये वंश है। इत्थे ये शब्द है, ये सदा थिर रहने वाले है। ये कोई झूठे गुरु नहीं, मैनू खिमा बख्शियो जे गल नहीं, पर सच सच रहेगा, सदा ही रहेगा। इस गल नू कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि गुरु दी तुलना किसी चलमा पीण वाले नाल कीती जाए, किसी नशे नू परोसन वाले वाल। उथे थोड़ी है, किथे असी। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नेक ना आना, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत, गोर मणि मठ भूल ना माना। ते असी मृतकां नू कबरां नू पूजन वास्ते तुर पए हां, असी गुरु दी खुशी थोड़ी लै सकदे हां? नहीं। महाराज जी कहते हरि तो बिना, प्रभु तो बिना किसी नू पूजियो ना, मड़ै मसान ना जाई। मड़ै मसान दी पूजा नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी कहती है। ये सच्ची पूजा है। केड़ा? जपो जी, तेरा नाम करी चन नाठिया, जे मन उरसा होए, करणी कंगू जे रलै, घट अंतर पूजा होए, पूजा कीचै। नाम ध्याईऐ जपो जी पूजा कीचै। नचना टपना पूजा नहीं है। गफलत दे विच अध नंग शरीर ऐ तुरिया होना, मूँह तो कबूल बोलना, ये रब की बंदगी नहीं है। असल गुरु अमरदास जी का सिख वो है जिहड़ा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी, जिहड़ा मूँह तो गालां कबूल कढ़दा, वो कित्थों हो सकता है? नहीं भाई, ये बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल शुरली छड्डी है। पहला कहंदे जी साडे जट ने, पहला जट लाना पिछे ला लिया, हुण कहंदे जी भल्ले ने जिहड़े बाकी वो भी ला लो। हुण सिर्फ और सिर्फ निरी चाल है, और कुछ नहीं है। सिर्फ चाल है। सिर्फ और सिर्फ पंजाब जिहड़ी चंगी सियाणी लुकाई है, ओदा भी बेड़ा गर्क करने वाली गल है। इस करके जागो, इस करके जागृत होवो। गुरु की बाणी, गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहदा संपूर्णता दिवस बना रहे हो, वो दुनिया के लोगों गुरु ग्रंथ साहब नूं छड्ड के कित्थे जाओगे? तो याद रखियो धक्के ही खाओगे। कित्थे भी गत मित नहीं है सिखो। जिहदा जो मूल है, जिहदा जो आधार है, उन्होंने ओदा मुबारक है। पर जिहड़ा सिख, जिहड़ा पग्गां बन्नी वाला भी उत्थे तालियां मार रहा है, ਉਹਦੇ हस रहा नच रहा है, फिर वो सिख नहीं है। सिख लई गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी। ते महाराज जी कहते करते की मित करता जाना है, वो करते ही जानता है। तो फिर कै दा मतलब अते नाल ही कह जाना है गुरसूरा पूर्ण गुरु। गुरु नानक साहब जी आप नारायण कला धार जग मह परवरे हो, वही जानता है। गुरु अंगद साहब पूर्ण ने, गुरु अमरदास जी पूर्ण ने, कोई दूसरा नहीं जान सकता। ज्ञान गवाया दूजा पाया, गर्भ गले बिख खाया। गुरु नानक साहब कहते हैं तुसी ऐ कपड़ा कर देंदे हो देवतियां दे अगे, मूर्तियां दे अगे। इहदा मतलब की है? कहते जी भोग लगता है, कोई देखे ना। पर महाराज कहते रब ने एक पर्दा पहले ही बनाया है, मनुख नूं पर्दा बनाउण दी लोड़ ही नहीं। कहते जी केड़ा पर्दा? महाराज कहते हनेरा। हनेरा इस जगत विच सब तो वड्डा पर्दा है। जद ये छा जाता है तो कुछ नहीं दिसदा। जद ये हनेरा छा जाए, साडा जिहड़ा संबंध है ना चानण करके ही है सब नाल, पदार्थां दा भी संबंध, जीवन दा भी संबंध। हनेरा जिथे छा जाए, ऐसी चद्दर है जिहड़ी सब कुछ लुको देंदी है। ऐसा ओला है जिहड़ा सब कुछ लुको देंदा, जिन्हों हनेरा कहा। तो महाराज कहते इस धरती ते अज्ञानता जिस तरह बाहर दा हनेरा सब कुछ लुको देंदा है ना, इस तरह गुरु तो वांझे रहना मनुख दे लई सब तो डाढा हनेरा है। गुरु है भी पर अंदर सुरत च नहीं, उहदे लई नहीं होएगा। रब है अंदर सुरत च नहीं, उहदे लई नहीं होएगा। हुण पिंडां च जाओ, बजुर्गां नूं कईयां नूं पता ही नहीं कि भाई इस धरती ते की दा की वसदा। हुण उन्हां ने सुनिया नहीं, उन्हां दे भाणे है ही नहीं। जे असी कहीए जे इत्थे सवेरा है, रात नहीं है, रात हो नहीं सकती। जे कोई कहे नहीं जी सारी धरती ते चानण है, ये झूठ होएगा। इथों हज़ारां मील दूर हनेरा भी पसर रहा है।
जे ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं। हुण इत्थे बैठे हैं, बाहर की सोझी नहीं की हो रहा की नहीं हो रहा, तो असीं इत्थे बह के कहिए बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा इधर नहीं, ये सच नहीं है। जो असीं जाणदे नहीं हाँ उस तो असीं अनजाण हाँ। इस तरह गुरु नानक साहब कहते पंडित जी पार ब्रह्म परमेश्वर की असीमता तो असीं अनजाण हाँ। साडी मत ते पर्दा पिया होया है, असीं नहीं जानते तो असीं सोचते हाँ है ही नहीं, जो कुछ है ये ओंकार ईश्वरी है, इस तो बाहर और कोई धरती नहीं। महाराज कहते नहीं, पाताला पाताल लख आगासा आगास ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन सहस 18 कहन कतेबा असलू। भावें जिन्नियां मर्जियां किताबां वेदां शास्त्रां दी गिणतियां कर लो, कतेबां दियां गिणतियां, क्योंकि सैमेटिक 4 ग्रंथ ने ते साडे जिहड़े इत्थे धरती दे जिन्हों असीं आर्यन रिलीजनस कहंदे ने, इहदे विच कठोपनिषद ग्रंथ, जैनियां दा ग्रंथ, बोधियां दा ग्रंथ, इन्हां सारियां दी 4 वेदां दी, सिमरतियां दी, पुराणां दी गिणती करके सहस 18 कहन कतेबां असलू। जिन्ना मर्जी पसारा कर लो, है तो वो एक लेखा होए तो लिखी है, लेखा होए जे कोई उन्होंने लिखण की कोशिश करे तां भी उन्होंने लिख नहीं सकता। साडी मत ते अज्ञानता का पर्दा पै गया, पर इस अज्ञानता की चद्दर नूं चक्कण वाला है चानण। जिथे चानण पै जाए उत्थे सब कुछ सोझी हो जाती है। इसी तरह अज्ञानता के हनेरे नूं दूर करने वाला है गुरु का शब्द, जिन्हों साहिब जी कहते बलहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए। इनू साहिब जी कहते ज्ञान गवाया दूजा पाया। गुरु तो दूर हो गए, ज्ञान तो दूर हो गए। दूजा का मतलब माया, ये दुख, ये कलेश, ये चुगली, ये बखीली, दूजियां दी जड़ां वड्डणियां, चुगलियां निंदा करनियां, ये चंगा लगन लग गया। गर्भ गले बिख खाया। महाराज कहते गर्भ के अंदर गलदे हाँ असीं, माँ के गर्भ के अंदर बार बार आवांगे, बार बार असीं दुख पावांगे। महाराज कहते जहर ही साडे मुख पएगा। गुर रस गीत बाद नहीं भावै सुनिया, गहर गंभीर गवाया। सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। महाराज जी कहते इस धरती ते कामण देख काम लुभाया, सुत कंचन स्यों हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। सारा कुछ अपना कर लिया, रब तो पराए हो गए, बेगाने हो गए, वो आई नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ही नहीं, ये भी मेरा ये भी मेरा। पर महाराज जी कहते जे गुरु की बाणी नहीं सुनी, इस सच्चे पातशाह का बचन गीत नहीं सुनिया, इनू गीत ना आखियो, क्योंकि गीत आखना असी सोचते हैं दूसरे पासे तुर गए। दुनिया के लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी ते गीत आखता, तो फिर कबीर साहब की गल की करिए। लोग जाना यह गीत है, ये तो वो जिहड़ा गाएगा उन्होंने पता लगेगा है शब्द, पर बाणी रूप दे विच महाराज जी ने इहदा अस्थूल रूप से सूक्ष्म रूप दृढ़ किया। सूक्ष्म शब्द ज्ञान है, अस्थूल इनू गाया ही जाएगा। गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुरपुरै तू राख्या, प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या। गावन बाणी है, पर जिस बाणी नू गा रहे हो वो शब्द है, वो ज्ञान है। जिन्हें गाया ही नहीं, गुर रस गीत बाद नहीं भावै सुनिया, जिन्हों चंगे ही नहीं लगते, जिहड़े सुनना ही नहीं चाहते बाणी नू। महाराज जी कहते गहर गंभीर गवाया, अंदरों सहज भी गया, सुख भी गया, अंदरों वड्डपन भी गया, ते सब कुछ गवा के महाराज जी कहते रब तो भी टुट गए, वड्डे रब नूं तोड़ दिता। पार ब्रह्म परमेश्वर तो असी हुण असी कहते हैं जी उत्थे ते बाणी गाई जाती, असी जिथे जाने आ देहधारी नूं पर पूजते ते देहधारी नूं, उत्थे बाणी भी प्रमाण नहीं। अकाल दा पुजारी अकाल नूं पूजेगा, पर किसी देह नूं नहीं पूजेगा। इस करके गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नाल जुड़ के सिर्फ और सिर्फ अकाल, क्योंकि जे किसी मनुख तो नाम लांगे ना, किसी का नाम लांगे, अखां बंद करके नाम जपांगे, उहदा चेहरा मल्लो मल्ली अखां अगे आएगा। काल दे पुजारी बनांगे, जे गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख पंजां तो नाम की दात लांगे, फिर अकाल दे पुजारी बनांगे, फिर किसी मनुख का चेहरा अगे नहीं आएगा। पर जे ये भाया ही नहीं, फिर महाराज जी कहते गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लहया, मन तन साच सुखाया।
गुरु राही ये सच इस धरती ते प्रगटाया। जपो जी कि बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। ये मिल ही नहीं सकता अमृत सुख। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आख सुनाया कि गुरु दे विच प्रतक हर आप मौजूद है। और रोज पढ़ते हैं सतगुर बिटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। ते सतगुर कौन है? सतगुर कौन है? सतगुरु है बोह था बिरला किनै विचारिया। किसी बिरले ने जाने कि गुरु एडा वड्डा है। इस करके गुर सच कहा, गुरु ने सच आख्या। अमृत लिया कि इस बाणी विचों जीवन का अमृत मिलेगा, मौत खत्म हो जाएगी। अमृत का मतलब मृत्यु के अगे जित। मृत्यु अगे भी ऐड़ा लाता अमृत, जिथे मौत नहीं है इनू क्या अमृत लहिया। मन तन साच सुखाया, मन सुखी तन सुखी। आपे गुरमुख आपे देवै, आपे अमृत पियाया। गुरु दे सन्मुख किसी बिरले नूं ये दात मिलती है, पर यह दात कोई धक्के नाल नहीं लै सकदा। जित जित लावो तित लगै हरनाथ, नानक इनकै कछु नाथ। ये गुरु की उपमा दसी है कि आपे गुरमुख आपे देवै। वो आप ही गुरु राही किसी बिरले नूं देंदा है। आपे अमृत पियाया, ये नाम बाणी दा अमृत वो आप ही पियाउंदा है। एको कह, अगे कहंदे एको एक कह सब कोई। सब कहंदे एक है, एक है, पर महाराज कहंदे है एक ते है, पर कोई बिरला जानदा है। एको एक कह सब कोई हौमै गर्भ व्यापै। असीं कहंदे हैं एको ही है, एको ही है, पर एक तां है जे ये मैं खत्म होएगी। मैं साड़ी खत्म नहीं होती। जिस दिन मैं दी मैल उतरेगी उस दिन पता लगेगा कि तू दाना तू अबचल, तू ही जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोलै नाही। ताहम कैसी ताती एक है एक है, एक तू ही एक है एक है, तू राया तो कृपा ते सुख पाया। एको एक कह सब कोई हौमै गर्भ व्यापै। तू कह के भी असी मैं तक अड़ जाने आ। अंतर बाहर एक पछाणै, इउं घर महल संघापै। जेड़ा आखे घर बाहर तेरा प्रभासा, तू जन कह है। अंदर भी तू है ते बाहर भी तू है। ये भी तेरा दिता ते ये भी बाहर दा भी तेरा दिता। तू दाता दातार तेरा दिता, खावना संघापै पछाणिया जाएगा। प्रभ नेड़ै हर दूर न जानो, एको सृष्ट सभाई। सारी सृष्टि एक ने बनाई है, दूर ना जानो। वो नेड़े है। कह रविदास हाथ पै नेड़े, सहजे होए सोई। वो इन्ना नेड़े है, किन्ना नेड़े है? कबीर साहब नूं पुछो कि वेदां दे विच वेदां नूं पढ़िए ज्ञान हासिल करिए फिर मिलेगा? नहीं। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए। किन्ना नेड़े है? टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर। एक दम टिक के वाहिगुरु आखो, वो नेड़े है, वो अंदर वाजे इको दम। कबीर साहब कहते एक श्वास लैके असी रब तो टुट सकते हैं, इको श्वास नाल असी पाप दे फुरने लै सकते हैं, पर सच्ची मुच्ची अंदरों जुड़ के मैं नूं त्याग के इको फुरने नाल असी वाहिगुरु दे दीदार कर सकते हैं। टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। है हदूर नेड़े है, कत दूर बताऊं। कहते दूर ही आख्या जाता, बड़ा दूर है, नहीं। है हदूर कत दूर बताऊं, दुंदर बांधो सुंदर पावो। वो तो एक खिन एक दम दे विच मिलना है। एक दम वाहिगुरु बोलिया वो नेड़े है, पर वो दम सानू मैं नहीं छड्डदी। मेरा मेरा ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब के छापना एक राम पराया। ते बाबा शेख फरीद कहते किन्ना नेड़े है। आज मिलावा शेख फरीद, कहते अज मिलो एक खिन च, अज हुणे। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कुंजड़ियां मनों मचंदड़ियां। आ मन मैं दे विच जिहड़ा जुड़िया होया इनू हटा के तू वाल जोड़ लो। आ इहदी टाकम कुंजड़ियां, आ कुंजियां ला लो विकारां तो, तां मिल जाएगा। ताइयों ते कहंदे गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग परत है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी ले हन हद बाजे। जे तू तो मैं वाल कोई आ जाए, वाहिगुरु मैं तो तू वाल कोई आ जाए, ये मैं अजे हजे तू वाल नहीं जाता। इस करके गुरु नानक साहब जी सच्चे पातशाह कहते
प्रभ नेड़ा है पर सानू दूर जापदा है, क्योंकि मैं है, मेरा है, मेरे करके है। जे मैं हाँ तो ये सब कुछ हो रहा है, जे मैं हाँ तो मैं एडी वड्डी पदवी ते बैठा, मैनू तुसी सलाम नहीं की, मैनू सत्कार नहीं किया, खड़े नहीं होए मेरे वास्ते। जी कौन? मैं जी प्रोफैसर होना। ओ बंदिया अकल कर, हुणे बिस्तर ते डिग जाएगा। कादी प्रोफैसरी, कादा डॉक्टर, कादा इंजीनियर, कादी पदवी? तेनू रब वालों सेवा मिली है, तेरे वर्गे सैकड़े आके सेवा निभा गए, ते अगे भी सेवा निभदी रहेगी। कदी ये मान ना करी मैं हाँ। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है सिर्फ और सिर्फ एक तो अद्धी, अद्धी तो अद्धी, उस तो भी अद्धी 3.5 मिनट क्या नाम जप लिए, एक घड़ी आदि होते रब मिल जाएगा। ते दूसरे पासे ये भी क्या, जे 3.5 मिनट आ श्वास रोक दो ना, बंदे की औकात पता लग जाएगी असी कौन होंदे हैं। आ सिर्फ 3.5 मिनट रुक जाए, आ गाजर मूली वर्गियां तो भी जावांगे। इस करके महाराज कहते आ जेड़ा मैं लई फिरदा ना, मैं भी होना। महाराज कहते पहला ये त्यागी है, असी कुछ नहीं होंदे। उन्हें सेवा लगाई ते कर रहे हैं, निभा रहे हैं, इत्थे चले जाना है। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मठिया संग ना कछू लै जाए। कोई नहीं लैके जानिया पदवियां इत्थों, कुछ नहीं, सिर्फ सेवा दिती है ते वो सेवा निभा जाइए, भला कर जाइए किसी का। क्योंकि इत्थे आके शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, समाप्ति वाला है। शेख हयाती जग ना कोई, जिस आसन हम बैठे कहते बैस गया। बाबा शेख फरीद जी कहते करोड़ा आए तेरे वर्गे, कहते करोड़ा इत्थों चले गए, तू ही अपनी औकात च रह, तू कुछ नहीं होता। बस मैं मनप्रीत ही हाँ, बस इन्नी को औकात है। 3.5 मन देहोरी चलै पानी अन्न जिन्ना है, बस उन्ना की है, होर कुछ अपना नहीं। आयो बंदा दुनिया विच वथ आसूनी बन, मलकल मौत जे आपसी सब दरवाजे भन। 3.5-4 मिनट साह रुक जाए, बंदे की औकात का पता लग जाएगा। महाराज कहते ये है रब, आ छड़ तू कुछ होना है, तू कुछ नहीं होता। बस जो है सब जियो पिंड नक मुख दिया, बर्तन को पानी अन खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन भोगानी जिन किए सुचित ना आवी, पशु हों कर जानी। महाराज कहते कादा फिर पशुओं वाला जीवन। साहिब जी कहते ये नेड़े है, इनू दूर ना जानो, प्रभ नेड़ा है हर दूर ना जानो। महाराज कहते इनू दूर ना जानो भाई, एको सृष्ट सबाई सारियां विच है, एकंकार अवर नहीं दूजा, नानक एक समाई। गुरु नानक साहब कहते हैं पंडित जी तुहानू ये लग्या तुहाडे करके इत्थे सारा कुछ चल रहा है, इत्थे सारी दुनिया आउंदी है नतमस्तक तुहाडे करके ही सब कुछ है। शिव जी भी तुहाडे करके दीदार दिंदे है, तुसी पर्दा हटाता ते प्रगट हो गए। नहीं भाई पंडित जी, जब तुसी नहीं सी तां भी ये सी, जब तुसी नहीं होवोगे तां भी ये रहेगा। बस महाराज उहदे राही सानू समझा रहे हैं कि भाई असी ये ना सोचिए कि मैं हाँ ते सब कुछ हो रहा है। नहीं, महाराज कहते कुछ नहीं हाँ, कुछ नहीं हाँ, बस इस समय की रफ्तार तुरदी रहनी है। बस जे असी कुछ हाँ ते कहिए हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। जे असी कुछ हाँ खाओ क्या सा लाही, किरम जंत वड्डी तेरी वडियाई करन वास्ते वड्डे आ। इस करके एक अंकार अवर नहीं दूजा, कोई दूजा नहीं, इको ही है, एक ओंकार है। नानक एक समाई, सब दे विच ओ समाया होया है। सतगुर जी बख्शिश करन। अज इत्थे समाप्ति है। आप जी नूं संपूर्णता दिवस दीआं बहुत मुबारकां। इस गुरु ग्रंथ साहब जी की वाहित बाणी के खजाने विच, जिन्हों गुरु अर्जुन साहब कहते थाल विच 3 वस्तु पईओ। देखो ये वस्तु कैसी है, यदि आरंभ भी 3 चीज़ों तो होंदी है। सुनिया सत संतोख ज्ञान, 3 चीज़ां ने। सिख दी जीवन की शुरुआत इन 3 चीज़ों तो होणगियां ते सिखर भी ये 3 चीज़ां। जप बाणी च पढ़दियां सुनिया सत संतोख ज्ञान, ते इस बाणी का जिहड़ा ये थाल परोसिया गुरु अर्जुन साहब ने कुल मानुकता लई। थाल विच 3 वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। विचार ज्ञान ही है, एक कोई गल है, तीसरी गल नहीं है।
अमृत नाम ठाकुर का पयो, ये नाम पर गुरु तो मिलना है, ये गुरु तो ही मिलना है, उन्हें ही देना है। पर ज्ञान पढ़न बुझण वाले बहुत ने, पर ज्ञान नूं हजम करने वाला कोई बिरला है। जे को खावै, जे को पूजै, जे को पुंचै, तिसका होए पुंचै, मतलब हजम कर जाए। सो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कोई ये ना समझो भाई देहाती ज्ञान है, किथे साडे बच्चे पंजाबी ना बोल पैण, किथे होर ना बोल जाण। अंग्रेजी सिर्फ 11 मुल्कां 'च ही बोली जाती है, इंटरनैशनल उन्होंने ना समझो। पर गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 15 वखरियां भाषा बोलण वाले बैठे ने वाहिद भगत, वखरियां, एक दी किसी नाल रलदी है तो दस दिओ। बाबा फरीद पंजाबी बोलदे ते नामदेव मराठी बोलदा है। पहलपुरीए पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। पहलपुर सा बिरा थोनपुर सा दमरा, असगा अस उसगा हरका बागरा नाचा, हरका बागरा नाचा पिंधी मैं सागरा। मराठी है जी, भगत सदना मराठी नहीं, वो बंगाली बोलता है। देख लो किनिया भाषा का, ये ते हरियाणवी भी है, घणो 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 सद लोड़ है। ये ते मुल्तानी भी है, एक पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई, हाई मतलब है होने वाला है। ये ते फारसी भी है, यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। ये गौड़ी मालवा मलवई देश दियां, मलवई भाव पंजाब च माझा मालवा दुआबा, ये देखो कितना खजाना है। माझा है, मालवा है, दुआबा है, पुआधी है, जिन्हों रोपड़ वेले रोपड़ वाले ता ता करके वो भी बाणी दे विच है, पुआधी भी है, मुल्तानी ये है, डोगरी ये है, पहाड़ी पंजाबी जिहड़ी रली हुई है ते इहदे विच लैंदी है, जिन्हों असीं पोठोहारी कहंदे हां। सत्त ते मूल पंजाबी दे रूप ने इहदे विच, मोटे मोटे जे कहिए ते 24 भाषावां ने, 24 लैंग्वेजेस, ते इस तो बाद मोर देन 120 डायलैक्ट्स, 120 अपरा भाषावां ने। फिर किवें कहंदे आ जी, किथे साडा बच्चा पंजाबी ना बोलण लग पे अनपढ़ रह जाएगा। 120 उपभाषा जानन वाला, 24 भाषा जानन वाला। संस्कृत इहदे विच है, इहदे विच रेखता इहदे विच है, फारसी इहदे विच है, मूल रूप दे विच है। खाक नूर करदम आलम दुनिया आसमान ज़मीं दरख्त आप पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, दिल कब्ज कब्जो कादरा दोजक सजाए, वली नियामत बिरादरा दरबार मिल्क खानाए, जब अजराइल बस्तनी तब चे कारे बिदाए, हवाल मालूम करदंग पाक अल्लाह, बगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। एक भी अखर दसो कोई पंजाबी है, सारी फारसी सी, सारी मूल फारसी। इस करके सच्चे पातशाह ने ये जड़ा संपूर्णता दिवस बख्शिया है ना, एक अल्लाह गुरु ग्रंथ साहब का संपूर्णता नहीं है, मनुख उस दिन संपूर्ण होएगा जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगेगा। उस दिन साड़ी संपूर्णता है, इस तो बिना अधूरे हैं। कला गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यह नहीं कहता कि गुरु ग्रंथ साहब संपूर्ण हो गया। इस धरती ते हर एक मनुख संपूर्ण है, जिन मानस ते देवते की एक करत ना लागी वार, जड़ा ये आखे सब सिखन को हुक्म है, जड़ा गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़े, होर किसी नाल, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी का सिख बने, वो ही संपूर्ण हो सकेगा। संपूर्ण दिवस दियां आप जी नूं मुबारकां। विचार करदियां बेअंत भुल्लां बख्श देना जी। सारियां दा धन्नवाद है जी। फतेह बुलाओ आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। रामकली महला तीजा नानक ओंकार। सतगुर प्रसाद अनंत सतगुरु में पाया, सतगुरों का सरस्वती मन वजिया वाधनिया रतरिया।